Morning, everybody. I am Dr. Dev Swarup, Vice Chancellor, Dr. Bhimrao Ambedkar Law University. And at the outset, I express my uh, thanks and would like to welcome you all uh, as we are partner in process. So it was decided to hold this interactive session. I'm sure that I'm laudable and it's clear. Communication is clear. Yes, sir. Right. Yes, sir. Thank you. So for today's interactive section, there are specific issues to be discussed and to be clarified, right? As you all know that this Dr. Bhimrao Ambedkar Law University came into being by an act of state legislature on 26 February 2019, which was formally started functioning with the joining of the Vice Chancellor on 2nd March 2020. And subsequently, other officials joined the university. So the university started functioning from 2nd March 2020 after my joining. Then to undertake various steps, on 22nd April last year, the university during Corona lockdown period, university launched its website. It was on 22nd April. Then you may recall that on 22nd July, the state government issued an office order in compliance or in pursuance of the provisions of the Act of the university passed by the state legislature. The order of dated 22nd July specifically mentions that all the law colleges of the state of Rajasthan, other than the constituent colleges of other universities, will be affiliated with the University Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, Jaipur, for the session 2020-21. So it was an office order, and that order was sent to all the universities, and then in compliance on 27 July, the Vice Chancellor also sent the letters to all the universities, its Vice Chancellors, its registrars, and also to the principals of all the law colleges of the state. As per the list received from College Commissionerate, there are 88 law colleges in the state of Rajasthan affiliated to different universities up to previous session. So 88 law colleges, we got the list from the Commissionerate of College Education. So this is the statement of the fact. Now I will tell you certain facts about the university. The university being law university and the colleges being conducting various law programs have to have certain compliances of the statutory bodies like BCI, especially BCI. So while undertaking any law program, the college is supposed to have the approval of BCI, and similarly, the state university established by the government for particularly granting affiliation, awarding degrees in law is supposed to take affiliation or approval from BCI.
University is the only authority which can grant the degree, and the university is established by the state government or the central government like central universities. But for the sake of certain maintaining academic standards, particularly in the field of law or in the field of medical education, the universities are supposed to obtain a formal affiliation approval from the BCI. So, to undertake this process forward, this university has submitted a formal proposal to BCI. First was on 6th March 2020. I met the chairman. I gave a letter indicating or specifying the purpose of the university. Then on 27th July, a letter was sent to BCI. Then on this 30th March, a proposal in triplicate along with all the documents, along with all required fees of 5,50,000 has been submitted to BCI. Now BCI will take its own time. Their team will come and we will take care of all whatever is necessary. So from that point of view, no university should have any worry or any doubt. It's a process and the process may take some time, but the interests of anyone, either students or teachers, whosoever is affiliated with this university, are fully secured, intact, and no reason to be worried. Besides that, this university started its own academic session 2020-21 with LLM 1-year program with 40 students. Our classes are going on for the second semester now because recently we have completed the examination of first semester. Classes are being taken online, and for that we have got a good number of faculty from the University of Rajasthan as guest faculty. So the university at its own, as its activity, as its residential wing, has already started academic programs. That is LLM 1 year. Now the second part is, and for that we have got 35 faculty positions. Government has sanctioned 5 professors, 10 associate professors, and 20 assistant professors. And very soon we are going to undertake the process of making selections of the faculty. And the faculty will be the best in the country in the university. That I am say with proper conviction. Besides that, the university got certain non-teaching posts, and presently the office of the university is being operated from Shiksha Sankul, Jaipur. And we are going to have some more space to meet our requirements. You may also be aware that the government of Rajasthan has allocated land of 1,482.7 square meter at Ajmer Road near other universities. This is near Daimikala, where Patrikarta Vishwavidyalaya is also being constructed. Some private universities are also there nearby, like Manipal and others. So the state government has already allotted the land, and very soon we are going to start the construction work on that land. So the government and the university administration is very much sincere in all its endeavors. The unfortunate part is that sincerity is missing on the part of colleges and on the part of the universities where these colleges were affiliated till now. Just imagine that on 22nd July, letter or order was issued by the government. Then subsequently we have written 8 letters. We have sent the copies of the letters to the colleges also. And the clear mandate is
that from the session 2020-21, all the students admitted in this session will be enrolled with the University of Dr. Bhimrao Ambedkar Law University. Enrolling means the university will administer these colleges for their academic programs, for enrollment of the students, checking their eligibility, watching that the course curriculum is taught properly, and examinations are held on time and results are declared on time. You may also be aware that on 17th November, the Dr. Bhimrao Ambedkar Law University, after the order was issued, and it was said that all the law colleges will be the part of this university as a affiliating institution, we took almost 4 months work day and night for formulating the uniform syllabus for various law programs being undertaken by these colleges. And while undertaking the process, it was a very competent committee of the experts was notified. The committee worked almost 4 months day and night and formulated all the syllabuses for various academic programs being undertaken by these colleges. While undertaking this process, it was also kept in mind that the previous syllabus should retain as it is, and certain latest amendments or additions should also be added while formulating the syllabus, because अगर मान लो आज के समय में कोई बच्चा ये पढ़ रहा है एलएलबी का प्रोग्राम और 370 का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ता है, या जो लेटेस्ट लेजिस्लेशंस में चेंजेस आए हैं अगर उनको नहीं पढ़ता है, तो उसके लॉ पढ़ने का, एलएलबी डिग्री करने का, एलएलएम करने का क्या फायदा है। तो हमारी कमेटी ने बहुत ही बैलेंस व्यू लिया और इमीडिएटली हमने 17 नवंबर को फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अपलोड कर दिया, सबको लेटर लिख दिया कि इस सिलेबस को मेहरबानी करके कृपया करके आप लोग पढ़वाइए। उसके बाद में हमने पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए तैयार करके अपनी वेबसाइट पर भेज दिया, सबको सूचना कर दी। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत क्रूशल है, क्योंकि इस समय हालात बहुत क्रूशल हैं। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग उस सिलेबस के हिसाब से स्टूडेंट्स को पढ़वाइए, और उसको पढ़वाने के लिए अच्छे टीचर्स आप एंगेज करिए। जो टीचर्स आप एंगेज करें उनको जिम्मेदारी दीजिए कि वो कोर्स को बहुत एफिशिएंटली कवर करें, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि आज तक 56 कॉलेजेस एफिलिएट हो गए हमारी यूनिवर्सिटी के साथ। कंप्लीट लिस्ट 56 कॉलेजेस की हमारी वेबसाइट पर है। 88 लॉ कॉलेजेस की हमको लिस्ट मिली कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन से। क्या विडंबना है देखिए आप। और जब हमको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से जो लिस्ट मिली है उसमें 88 नहीं, उसके हिसाब से 80 कॉलेज बैठ रहे हैं, और अभी तक जो हमको एफिलिएशन हुआ है वो 56 कॉलेजेस का एफिलिएशन हो गया है। 5 कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है जो बीकानेर से आए हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं वो प्रोफेशनली बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं किए गए, और मैं इसके लिए कॉलेजेस को इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानता हूं कि कॉलेजेस में कोई चेतना नहीं है, कॉलेजेस के पार्ट पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव नहीं है। आप लोगों को अपने अपने, जब आपको ये जानकारी है कि 2020-21 की परीक्षाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित होंगी, तो ये कैसे संभव है कि उस कॉलेज का इमीडिएट एफिलिएशन न हो, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट न हो। और अब जो हम एग्जामिनेशन फॉर्म इशू करने जा रहे हैं, 1-2 दिन में कर देंगे, तो उस पर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और इस चीज का ध्यान रखें कि जो बार काउंसिल ने आपको नंबर अप्रूव किया है स्टूडेंट्स का, उसकी डिटेल हमको दीजिए। हम उतने ही स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे, उतने ही स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट जनरेट करेंगे।
अपने पार्ट पर आपने कैसे किया है। सपोज एक दो जगह पर इस तरह की जो है वो सिचुएशन देखने को आ रही है, वी वांट क्लियर क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन फॉर एनी डेविएशन। तो एक तो हैरानी की बात यह हुई कि साहब 88 में 80 कॉलेज बैठ रहे हैं, 80 में भी 56 एफिलेटेड हो गए। 5 कॉलेज आपके बीकानेर के, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमें उन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस का उतना सहयोग बिल्कुल नहीं मिला है, जैसे कि उन कॉलेजेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट्स को एक अपील करूंगा कि आप लोगों का टाइम शेड्यूल या ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सफर कर सकते हैं कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की ढिलाई की वजह से, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बिकॉज एक्सेप्ट वेरी फ्यू कॉलेज प्रिंसिपल्स, कुछ के अलावा अधिकांश प्रिंसिपल्स ने अपने कॉलेजेस की संबद्धता के संबंध में समयबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय को अप्रोच करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भिजवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई? ये यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए बनी है। आप लोगों को जो भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के यहाँ पर आप उन सेक्शंस में जाकर जो चक्कर लगाते हैं, आपके कॉलेजेस के जो ऑफिशियल्स हैं और इवन प्रिंसिपल्स को भी कई बार परेशानी झेलनी पड़ती है। आप ये महसूस करिए कि ये विश्वविद्यालय आप लोगों का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आप लोगों का ये जॉइंट वेंचर है, ये स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है। इसके फैसिलिटेशन से आप लोगों को एक एकेडमिक इंप्रूवमेंट होगा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगी, और उस हिसाब से मुझे उस तरह का सहयोग बिल्कुल भी यहां देखने को नहीं मिला है। तो आप ये देखिए कि जिम्मेदारी के साथ आप लोग इसका हिस्सेदार बनिए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय सरकार ने बना दिया, लेकिन सरकार ने बनाया है यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के शिक्षकों के लिए और हम सब के लिए। तो हम सब में तो हम सबकी जिम्मेदारी आती है ना। इसके बाद मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग हमारी जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली विजिट करें। प्रिंसिपल्स निश्चित तौर पर इसको आदत का हिस्सा बनाएं, और इसके साथ साथ आप अपने अपने कॉलेजेस की वेबसाइट्स को इंप्रूव करिए, क्योंकि हम आप लोगों के कॉलेजेस की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट से लिंक करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि आपके कॉलेजेस की जितनी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के लिए और उनके गार्जियंस को जानने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो स्टूडेंट्स का नंबर हो, बीसीआई का अप्रूवल लेटर हो, हमारी यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन लेटर जो इशू हुआ है आपको वो हो, चाहे टीचर्स की संख्या हो, उनके नाम, उनकी क्वालिफिकेशंस, महाविद्यालय में क्या क्या फैसिलिटी हैं, और इस कोविड के चलते आप लोग क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा विश्वविद्यालय जो भी फैसिलिटेशन कर सकता है वो निश्चित तौर पर आप लोगों को करेगा। हम एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के तहत काम करना चाहते हैं, जिससे कि लीगल एजुकेशन का जो मुख्यमंत्री जी का यहाँ का विजन है और उनका कंसर्न है कि पूरे स्टेट में लीगल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो। आज एलएलबी करके जो बच्चा निकलता है, अगर वो 2 पेज का ड्राफ्ट अगर अच्छा नहीं लिख सकता और जाकर कोर्ट्स में वकीलों से जो है वो डांट खाता है कि तुम कौन से कॉलेज से एलएलबी करके चले आए हो, इस स्थिति को बदलने की कोशिश है इस विश्वविद्यालय के माध्यम से। और अगर आप लोग सहयोग देंगे तो ये स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि हमारे जो टीचर्स अपॉइंट होने वाले हैं 35 फैकल्टी, हम उनको आप लोगों के महाविद्यालयों के लिए मेंटर की तरह से हम उनको यूज करेंगे। हम ये चाहेंगे कि कॉलेजेस में एकेडमिक जो वीकनेसेस हैं या जो गैप्स हैं या जो डेफिशिएंसीज हैं उनको एड्रेस किया जाए, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हों, और जितने भी कॉलेज हैं वो सीरियसली कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि डिग्री केवल विश्वविद्यालय दे सकता है, और ये विश्वविद्यालय जब आप लोगों के स्टूडेंट्स को डिग्री देगा तो ये इंश्योर जरूर करेगा कि आप लोगों के कॉलेजेस में एज पर रिक्वायरमेंट एकेडमिक जो 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 स्टैंडर्ड्स हैं या एक्टिविटीज हैं वो इम्पार्ट की जा रही हैं। तो इसको आप लोग चाहे जिस तरह से महसूस करें, लेकिन ये जिम्मेदारी का भाव है कि हमें
एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर की तरह से इसमें कंट्रीब्यूट करना है। और अभी जो कोविड की सिचुएशन है उसके चलते जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव मोड है, देखिए हमने अपने एलएलएम के स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कराकर एग्जामिनेशन कराया है, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि जो हमारे विश्वविद्यालय से जो एफिलेटेड होने वाले कॉलेज हैं उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन इस समय पर होना चाहिए, लेकिन किसी भी महाविद्यालय ने ऐसी फुर्ती नहीं दिखाई कि वो जल्दी से अपने आप को एफिलेट कराएं, जिससे कि हम पूरे प्रदेश में एक साल में जो बच्चों का एनरोलमेंट है हमारे इन लॉ कॉलेजेस में वो करीब करीब 18,000 है, राइट, एलएलबी में और एलएलएम में दोनों में मिला के। उस 18,000 बच्चों में करीब 1,800 से लेकर 2,000 बच्चे सेमेस्टर सिस्टम पे पढ़ रहे हैं, यानी कि 5 इयर्स लॉ वाले जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम पे हैं, बाकी आप लोगों का बहुत सौ का एनुअल सिस्टम है। वैसे तो बार काउंसिल ये भी कहती है कि आप जो है सेमेस्टर सिस्टम पे शिफ्ट करें, पर आज का सिनेरियो ये है कि करीब 18,000 बच्चों में 2,000 बच्चे सेमेस्टर सिस्टम के हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम पे जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा की क्या तैयारी है, क्या प्रयास हैं, क्यों नहीं किए गए प्रयास, और उन बच्चों को जो इसके चलते असुविधा होने वाली है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि हमारे पास किसी कॉलेज ने एफिशिएंटली बिल्कुल अप्रोच नहीं किया कि साहब जल्दी से एफिलिएशन करो जिससे हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन सफर न करे। हमने अपने एलएलएम के एग्जाम स्टूडेंट्स का एडमिशन किया, पूरा सेशन हमने जो पूरा सेमेस्टर सेशन है उसको कंप्लीट कराया, और हमने सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी कंप्लीट किया है। सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हमने शुरू कर दी ऑनलाइन। तो जब ये विश्वविद्यालय के एकेडमिक प्रोग्राम में हो रहा है तो विश्वविद्यालय से संबद्ध होने वाले महाविद्यालयों में क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर सोचिए जरा, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, इसके अलावा जितना भी मटेरियल है आप लोगों के बहुत सुविधा है, आप लोगों के पास अगर वहां पर टीचर्स नहीं है तो आप अच्छे अच्छे टीचर्स को एक रीजनेबल ऑडिटोरियम देकर ऑनलाइन क्लासेस कराओ इन बच्चों की, इनके फिल इन दी ब्लैंक कराओ, इनको सप्लीमेंट कराओ, जिससे कि नॉलेज पार्ट पर ये बच्चे डेफिशिएंट फील न करें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जरूरी नहीं है कि आपके वहीं पर टीचर भी हो, अगर नहीं भी है किसी सब्जेक्ट के टीचर आपके पास तो आप जहां पर अवेलेबल हैं उनसे क्लासेस कराइए, लेकिन किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इस सब में हम सब की जिम्मेदारी है। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक तो वो लोग जरा लिस्ट देख लें, 56 कॉलेजेस की लिस्ट पड़ी हुई है, उसके अगेंस्ट उनका इनटेक पड़ा हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स का उनका बार काउंसिल का अप्रूवल है। तो 56 के अलावा जितने कॉलेज हैं लॉ कॉलेजेस, वो फौरन अपने एफिलिएशन की जो प्रक्रिया है उसको संबंधित विश्वविद्यालय को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनके पार्ट पर तो जिम्मेदारी आनी नहीं, जिम्मेदारी आनी है मुख्यतः प्रधानाचार्यों के ऊपर, और प्रधानाचार्यों को ही जवाब देना है छात्रों को, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग है सेशन 2020-21 की, वो शिफ्टिंग अब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत से केसेस में अभी तक नहीं हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस कंसर्न से, मेरी इस चिंता से जरूर सहमत होंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा, जिन लोगों के कॉलेज एफिलिएट नहीं हुए हैं अभी तक, और वो लोग सोच रहे होंगे शायद कि ऐसे ही चलता रहेगा। भाई, स्टेट लेजिस्लेचर का डिसीजन, वो एक्ट है, एक्ट की कंप्लायंस में गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया, तो वेयर इज द सब्स्टिट्यूट नाउ? और महानता की बात है कि बहुत से विश्वविद्यालय उसको जो है वो सिर्फ वो क्लरिकल लेवल तक वो पेपर्स घूमते रह गए, और जब हमने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से कहा तो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने भी मीटिंग की सभी वाइस चांसलर्स की, और उसमें कहा कि समयबद्ध तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहुंचाएं, और उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए, और हम तो उसके बाद से हमारे
रजिस्ट्रार हैं, हमारे एकेडमिक कंसल्टेंट हैं, हमारे एफिलिएशन के कंसल्टेंट हैं, दीपक भटनागर साहब हैं, आचार्य जी हैं, मृदुल जी हैं, राजनारायण शर्मा जी हैं, हमारे वो और जो साथी लोग हैं यहाँ पर ऑफिस के। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि रात में जो 56 कॉलेज की लिस्ट अपडेट की गई है वो 2:22 पे की गई है। आप सोचिए जरा हमारा लेवल ऑफ कमिटमेंट। हमने इतने कोरोना के बावजूद, कोविड सिचुएशन के बावजूद अपने स्वास्थ्य के लिए प्रिकॉशन जरूर लिया है, लेकिन काम को हमने किसी स्टेज पर रोका नहीं, बल्कि सामान्य दिनों की तुलना में उससे दुगना काम किया है। तो इस प्रक्रिया में आप लोगों के थोड़े सहयोग न मिलने की वजह से हमें बहुत असुविधा हुई है, लेकिन अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। नाउ आप लोगों को जो एफिलिएट हो गए उनको लेटर जा चुके हैं, वेबसाइट पर लिस्ट डल चुकी है, जिनके एफिलिएशन होने उनके डॉक्यूमेंट्स हम एग्जामिन करके एफिलिएशन के लेटर भेज रहे हैं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिफिकेशन चाहिए आप हमसे संपर्क करिए, हम उसका क्लैरिफिकेशन देंगे। बहुत से साथियों ने ये क्लैरिफिकेशन सीख किया कि साहब 2021-22 का एफिलिएशन की हमारी फीस जल्दी से ले लो। उन्हें 2020-21 की परवाह नहीं है। हम 2021-22 का एफिलिएशन सिर्फ उन कॉलेजों का कंसीडर करेंगे जिनका एफिलिएशन हम 20-21 का ग्रांट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी नया कॉलेज तो बनने वाला है नहीं, बार काउंसिल का मॉरिटोरियम है, तो नए कॉलेज का तो कोई हमारे पास प्रपोजल आने का सवाल नहीं है। और पुराने कॉलेज हम सिर्फ उनको एफिलिएशन देंगे जो हमारे साथ एफिलेटेड होंगे, क्योंकि 2020-21 एक ऐसा ईयर है कि जिसके लिए जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनकी परीक्षाएं, उनका एफिलिएशन, उनकी परीक्षाएं सिर्फ हमें ही करानी है। तो जब 2020-21 का नहीं किया है जिसमें आप लोगों ने एडमिशन दिए हैं तो 2021-22 का हम एफिलिएशन कैसे दे सकते हैं? इसलिए इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दो इशू हैं। एक इशू है कि 2020-21 के एफिलिएशन के लिए आप लोगों ने विश्वविद्यालयों में फीस जमा की है, तो मेहरबानी करके वो जो फीस जमा की है उस फीस को हमारे यहाँ आप ट्रांसफर कराइए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि हमने उस फीस की परवाह किए बिना हम एफिलिएशन लेटर इशू कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पैसा आप लोगों से यानी कि विश्वविद्यालयों से आ ही जाएगा, और इसलिए हमें जो हमारे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट्स हैं, वी आर वर्किंग टू मीट दोज कमिटमेंट्स डे एंड नाइट, बट नाउ वी नीड द फंड्स ऑल्सो, बिकॉज हमें अभी आप लोग जानते हैं कि एनरोलमेंट से लेके एग्जामिनेशन तक कितनी एक्टिविटीज होती हैं जिसको हमें अंडरटेक करना है। सो वी नीड दैट मनी। दूसरे, जैसे ही हफ्ते 10 दिन की बात है, मैक्सिमम 10 या 15 डेज मैक्सिमम के बाद हम 2021-22 के एफिलिएशन के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, और 21-22 के एफिलिएशन के लिए हम कोई लेट फीस नहीं रखेंगे, बिकॉज ये ड्रिल्ड प्रोसेस है। बहुत से लोगों को ये चिंता थी कि साहब दिसंबर तक नहीं होता है तो फिर लेट फीस जमा करनी होती है, इसलिए उन्हें इस चीज की बहुत चिंता थी, इसलिए वो दूसरी यूनिवर्सिटीज में 1-2 लोगों ने पैसे जमा करा दिए, उसकी वो जाने। लेकिन हमको, हमारे पास अगर एफिलिएशन का आपको प्रपोजल देना होगा तो हमारी जो भी फीस होगी वो 21-22 की आपको बिना लेट फीस के इनिशियली जमा करनी होगी, और केवल बिना लेट फीस के एक ही डेट मिलेगी। इसमें कोई लेट फीस के साथ हम ज्यादा उसको डिले नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश ये भी होगी कि हम एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को टाइम बाउंड तरीके से मीट करें, समय सीमाएं जो निर्धारित की जाएं हम उनका अनुपालन करें, और हम ये सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझौता न हो, किसी भी स्थिति में बच्चों की परीक्षाएं लेट न हो, और इस बात को विश्वविद्यालय सुनिश्चित करेगा कि किसी भी स्थिति में बच्चों के रिजल्ट को निकलने में देरी नहीं होगी, क्योंकि जब रिजल्ट देर से निकलता है तो उसका एक्सटेंडेड इम्प्लीकेशन होता है, और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है, कहीं आगे एडमिशन लेना है या जॉब लेना है। आप कुछ बोल रही हैं, कुछ कहना चाहती हैं कोई? एनीवे,
So I think it is necessary to be more responsible, to be more accountable, to be a responsible partner in this relationship between the university and the college, and the college and the students. So it's a joint venture, but because of lack of interest and slow action on the part of anyone, the entire process may derail, which we will never allow to happen. So आज का ये जो ओकेजन है वो ये बताने के लिए है कि विश्वविद्यालय अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी, कोविड की सिचुएशन के बावजूद भी, अपने जो भी कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन उसका कर रहा है और निर्वहन करने के लिए तैयार है। लेकिन पहले तो ये शिकायत कि आप लोगों से उतना उचित सहयोग नहीं मिला, और दूसरा ये अपेक्षा कि उचित सहयोग मिलना चाहिए, किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो काइंडली मेक इट ए पॉइंट, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, वो जब सफर करते हैं तो केवल महाविद्यालय के नाम की बुराई नहीं होती है, विश्वविद्यालय के नाम की भी बुराई होती है। सो इस प्रोसेस में 3 चीजें हैं। एफिलिएशन की प्रक्रिया तत्काल उसको पूरी करें जिन कॉलेजेस की नहीं हुई है, 56 की लिस्ट के अलावा मैक्सिमम 1 वीक के अंदर उसको पूरा करें विदाउट फेल। दूसरा, हम जो फॉर्म भेजने वाले हैं वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, उनकी डिटेल और एग्जामिनेशन रिलेटेड डिटेल्स भेजनी है। उसमें जो सेमेस्टर सिस्टम पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत जल्दी भेजनी है, जिससे कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कराया जा सके। अभी ये भी देखना पड़ेगा कि अभी ये जो सिचुएशन हो गई है कोविड के चलते, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी हैं कि उनके इस रिक्वायरमेंट को जो मैंडेट थी उसको हम कैसे मीट करें, क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले तक अगर होता तो उनका एग्जामिनेशन फिजिकल मोड पे हो जाता। हमने अपने एलएलएम के स्टूडेंट्स का ऑफलाइन एग्जामिनेशन कराए हैं। तो जो बच्चे सेमेस्टर मोड पर हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के इशू को एड्रेस करना इमीडिएटली। दूसरे जो एनुअल मोड पे हैं उन्हें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना इमीडिएटली विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एंड वन थिंग विच इज वेरी क्रूशल कि हमने जो सिलेबस बनाया है बहुत ही केयरफुली बनाया है, और उसमें जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको इंटैक्ट रखा है। जो लेटेस्ट एडिशंस हैं, लेजिस्लेटरी जो अमेंडमेंट्स हुए उनको इनकॉर्पोरेट किया है। और जब हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बच्चों के साथ किसी भी तरीके से अन्याय न हो। लेकिन आप लोगों से अपेक्षा है कि उस सिलेबस को देखकर उसको सप्लीमेंट करें, एडिशनल ऑनलाइन क्लासेस लगवाएं इन बच्चों की, टीचर्स को हायर करें और इन बच्चों को रिक्वायर्ड नॉलेज दें प्लीज। ये हमारी आपसे अपेक्षा है, निवेदन है। सिलेबस हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड with due approval of the BOM of the university, academic council of the university, and it has been done in the interest of the students. So the affiliation, then enrollment and examination, and to complete the teaching schedule, keeping in view the syllabus prescribed, and also to whatever added knowledge you can give to the students. इसके साथ आप लोग जो भी अगर इस विषय पे किसी की कोई क्वेरी है, कोई ऐसा विषय है जिसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको एक बार नहीं 20 बार समझिए, हम आपको समझाएंगे। आप सब लोग विधि शिक्षा के लोग हैं, लेकिन ये इंश्योर करिए कि हमारे पास जो दायित्व है हमारे ऊपर, हम उस दायित्व का सही निर्वहन करें। इसी अपेक्षा के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ ये ओपन है। आप में से जो कोई कुछ कहना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड जिन कॉलेजेस के एफिलिएशंस हो गए 56, उनको हमने स्पीड पोस्ट से भी भेज दिए, लेकिन वो हमारी वेबसाइट से उन लेटर्स को डाउनलोड कर लें। वो एफिलिएशन लेटर फाइनल है फॉर द सेशन 20 and 21,
and for 21-22 we will consider the proposals. We will invite the proposals and we will consider those proposals for 21-22 very soon. And nobody requires to be worried for any late fees etc. for session 21-22. यहाँ पर जो है, जो वर्क इन हैंड है उसकी चिंता लोग कम करते हैं, जो आने वाला है उसकी चिंता ज्यादा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो ये भी मुझे थोड़ा मिसिंग दिखा. सो आई वैल्यू contribution made whatever in limited sense by all of you, but we have some more expectations and you have all rights to expect whatever should be expected from the university. We are very much open and we are very much available round the clock, but we cannot make compromise with our own commitment. इसके साथ आप लोग जो कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है. नमस्कार सर, मैं डॉक्टर विभा शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से. हेलो जी विभा जी, नमस्कार, बताइए प्लीज. नमस्कार सर. सर, एक बिंदु है जिसके बारे में मैं कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी, वो ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते कई विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं बहुत ही विलंब से हुई हैं, जिसके की कारण परिणाम विलंब से घोषित हुए और उसी के चलते फर्स्ट ईयर की जो हमारे एडमिशन्स हैं वो मार्च तक चले हैं, जबकि जो सिलेबस हमारे पास मौजूद है अभी और उसमें जो प्रोविजन दिया है उसमें एडमिशन 30 दिसंबर तक साधारण रूप में कर देने की बात कही गई है. तो सर, इसके बारे में अगर आप लोगों की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाए ताकि बच्चे जो है व्यथित ना हो. थैंक यू. देखिए विभा जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच अपनाई जाती है. आपने जो बच्चे एडमिट कर लिए हैं और बीसीआई की अप्रूव्ड लिमिट के अंदर हैं, उसकी डिटेल हमको दीजिए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अब उसका मतलब पीछे की डेट में नोटिफिकेशन करना संभव नहीं होगा. आपके उन स्टूडेंट्स को हम एडमिट करेंगे, उनको एनरोलमेंट देंगे, लेकिन आपकी ऐसी सिचुएशन में जिम्मेदारी बनती है कि आप उन बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाएं जिससे उनका कोर्स कंप्लीट हो सके. तो जो टाइम फ्रेम फॉलो होना चाहिए था वो इन सर्कमस्टांसेस की वजह से जो डिले हुआ है, लेकिन हमने स्टूडेंट्स को फिर भी अगर अकोमोडेट किया है तो हम ऑल्टरनेटिव्स देखकर हम ये जो सिचुएशन है इसको भी एड्रेस करें. बट फॉर दिस यूनिवर्सिटी आज तक जो हम एफिलिएशन दे रहे हैं, एफिलिएशन की डेट तक जो आपके एडमिशन की डिटेल है और वो विद इन बीसीआई प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर है, तो हमारे लिए वो कोई इशू नहीं है. एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप उनकी पढ़ाई कराइए. श्योर सर, द लिस्ट विल बी डिस्पैच्ड शॉर्टली. प्लीज. और बताइए सब कोई. जी गुड आफ्टरनून सर. जी नमस्कार. मनीष जी बताइए. सर मैं सेंट मीरा लॉ कॉलेज राजसमंद से. सर एक ये इशू था सर, हमें 180 सीट्स अलॉट हुई थी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, बट आपकी वेबसाइट पे ओनली 120 सीट्स ही शो कर रहा है हमारे कॉलेज पे. ठीक है मनीष जी, देखिए ऐसा है, नाउ वी शुड हैव वेरी क्लियर टर्म्स एंड टर्म्स कैन नॉट बी डाइल्यूटेड बाय एनीवन. With regard to approval of the seats, the only authority is BCI. So BCI has approved, if BCI has approved 120 seats, we will admit only 120. We will not violate, we will not deviate. या आप हमें MLSU से वो 60 सीट्स और उन्होंने जो बढ़ाई उसका जस्टिफिकेशन लाकर हमें दिखाई, हम अलग से कंसीडर करेंगे. लेकिन इनिशियली हम सिर्फ, और इनिशियली नहीं, हम फाइनली, बिकॉज मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का जब वाइस चांसलर था तो वहां पर लॉ LLB बंद हो गया था, और इसलिए बंद हो गया था कि टीचर्स नहीं थे, और टीचर्स के बिना बार काउंसिल ने कहा कि यू कैन नॉट एडमिट एनी स्टूडेंट्स. हमने बहुत फास्ट तरीके से, जब वाइस चांसलर बनने के बाद 24 असिस्टेंट प्रोफेसर हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपॉइंट किए, और अपॉइंट करते हमने फॉरेन बार काउंसिल को अप्रोच किया कि
हमें LLB में एडमिशन देने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमारे पास अब फैकल्टी हमने अपॉइंट कर ली है, वी आर मीटिंग द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। अब मजे की बात यह देखने को आई कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बार काउंसिल ने 300 + 300 600 सीट्स दी हुई थी, और उसके अगेंस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 720 पे एडमिशन दे रखे थे पहले। तो क्या किया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 10% करके अपनी लेवल पे वो सीट्स की संख्या बढ़ा ली स्टूडेंट्स के प्रेशर में। जबकि बार काउंसिल, आपको पता है कि बार का LLB की डिग्री लेने के बाद आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यस यस सर। वो बात अलग है कि आपके सभी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन न कराएं तो ये इश्यूज नहीं फंसते हैं, वरना 120 स्टूडेंट जब बार काउंसिल ने अलाउ किए हैं तो 180 कैसे उसके अगेंस्ट पास होकर एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो हमने उसको 600 ही किया। हमने कहा कि 120 का बार काउंसिल का अप्रूवल नहीं है। इसलिए जब हमें बार काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसका रोल डिफाइंड है, तो उस रोल से हम कैसे जा सकते हैं, उस रोल को हम कैसे प्ले कर सकते हैं। सो यूनिवर्सिटी ने अगर किया है तो आप उससे पूछिए, लेकिन हम उतने ही स्टूडेंट्स आपके एडमिट करेंगे जितने का बार काउंसिल ने आपको अप्रूवल दिया है। और बताइए सर। गुड आफ्टरनून सर, अनुष्का विधि महाविद्यालय उदयपुर से सर। जी बताइए। सर, एक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम रिवीजन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जी। सर, एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म जब आएंगे सर, तो स्टूडेंट्स की कई सारी क्वेरी होगी सर, तो उसके लिए एक हेल्प डेस्क अगर बन जाता या हम लोगों का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले हो जाता तो हम उनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या किया जाएगा। दूसरा सर, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर नहीं किया है कि बच्चा कितने परसेंटेज पे पास होगा या प्रमोट किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये कुछ बिंदु थे सर, अगर आप ध्यान दें। त्रिवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न। एक तो ये कि हम ये जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो भी अपलोड करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा वो एग्जामिनेशन फॉर्म हम कॉलेजेस से ही भरवाएंगे, और कॉलेजेस से इसलिए भरवाएंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी का भी इशू है कि कई बार बहुत से बच्चे जो है वो ऐसे बोर्ड से पास करके आ जाते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी का इशू आता है, तो वो आप लोग चेक करेंगे अपने कॉलेज के लेवल पे। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दैट्स गुड। हम जैसे ही अभी अपना फॉर्म रिलीज करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म को, आप अपनी ऑफिस से लोगों को डिप्यूट करें, केयरफुली जितने अप्रूव्ड नंबर है उसके फॉर्म भरवाएं, और हम एग्जामिनेशन स्कीम फौरन यहाँ से अनाउंस करेंगे अर्लीस्ट पॉसिबल डेट्स पर। अभी क्या हो गया कि अभी एक इशू ये आएगा कि क्या फिजिकली हम एग्जामिनेशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये थोड़ा समय पहले हो जाता तो अब तक हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन करा सकते थे। आई एम श्योर कि त्रिवेदी आप मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडी है उसको हम फॉलो करेंगे, आपसे हम कंसल्ट करेंगे। और जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, आप सब लोग एग्जामिनेशन को रेगुलरली हैंडल करते हैं, तो ऐसा नहीं है ये सिंपल शिफ्टिंग है उस यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी के साथ। लेकिन एक बात जरूर है कि हम एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म के तहत इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल्स की जो राय है, उनका जो योगदान है वो सुनिश्चित किया जाएगा, और हम कॉलेजेस से अपेक्षा करेंगे कि इस परीक्षाओं के संपन्न होने में वो और ज्यादा जिम्मेदारी से हमको मदद करें, जिससे कि क्योंकि पहला साल है, अभी यहाँ पर भी हमारे पास भी कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर हम ये चाहेंगे कि हमें थोड़ा मदद मिलेगी तो जिससे बच्चों के साथ कम से कम कोई अन्याय नहीं होगा, कोई देरी नहीं होगी। ऑलरेडी देरी हो चुकी है। हम इमीडिएटली ये जो जैसे जैसे हमारे कॉलेज एफिलिएट होते जा रहे हैं, इनके एग्जामिनेशन के फॉर्म्स के लिए हम विद इन 2-3 days वी आर गोइंग टू issue this examination form, enrollment and examination form, and going to address this issue very shortly. Trivedi, please. सर, कई यूनिवर्सिटीज ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किए हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स भी कुछ कंफ्यूज हैं कि क्या सर हमारा भी होगा। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सिलेबस, बट स्टूडेंट्स हैव स्टिल क्वेरी दैट whether our university is going to reduce or not. खान साहब देखिए, इन प्रिंसिपल जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है, देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रिड्यूसिंग द सिलेबस, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है कि अगर आप सिलेबस रिड्यूस करते हैं तो फिर कौन सा करना है, फिर वो टाइम भी रिड्यूस होता है।
हमने अपनी यूनिवर्सिटी के जो LLM के बच्चों के एग्जाम कराए हैं, उसमें पूरा सिलेबस उनको पढ़ाया, उनको कंसल्ट भी किया। मैं ये मानता हूं कि जब हम सिलेबस को रिड्यूस करते हैं या एग्जामिनेशन का टाइम शेड्यूल रिड्यूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के साथ समझौता करते हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को पूरा सिलेबस पढ़वाइए और उनको मोटिवेट करिए कि वो सिलेबस को रिड्यूस करने पर अपना फोकस न करें। हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे जो एग्जामिनर्स हों उनको ये कहेंगे कि भाई ये जो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, इसको गौर करते हुए एग्जामिनेशन हमें कंडक्ट करना है, तो थोड़ा हमको मदद करें। ये एक तरीके से कंसर्न हम कन्वे करेंगे। लेकिन अगर हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, देयर इज नो ओकेजन और रीजन और जस्टिफिकेशन टू रिड्यूस द सिलेबस एट दिस जंक्शन। सर मैं डॉक्टर बिश्नोई ज्ञान विधि। हाँ बिश्नोई साहब बताइए। नमस्कार। हाँ, ये अभी जो इशू चल रहा था सिलेबस रिड्यूस का, तो इस संबंध में राज्य सरकार का निर्देश जो है वो भी विश्वविद्यालयों को प्राप्त हुए हैं कि जो एग्जाम जो लिए जाएं वो 60% मार्क्स के लिए जाएंगे। ऐसे बाकी यूनिवर्सिटियों में भी चल रहे हैं और ऐसे राज्य सरकार के जो पिछले साल के थे वो एज इट इज इस बार करने का उनका मन है और ये ऐसे ऑर्डर आए हैं। दूसरा मैं निवेदन कर रहा था कि जो अपनी ये जो वेबसाइट है जिसके अंदर 56 लॉ कॉलेजेस एफिलेटेड है, तो इन कॉलेजेस को तो अभी फिलहाल ऐसा कोई वर्क नहीं करना जैसे एफिलेशन का है, वो तो अब यूनिवर्सिटी के स्तर पे ही जारी होना है अभी। बिश्नोई साहब दो चीजें हैं। हाँ, एक तो ये कि ये जो आपका महाविद्यालय उसके लिए 2020-21 में जो बच्चे एडमिट हुए हैं उनके लिए विश्वविद्यालय यही विश्वविद्यालय है। अब पुराने विश्वविद्यालय की बात 2020-21 के संदर्भ में खत्म हो गई। वो विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है। जहां तक राज्य सरकार की गाइडलाइंस का या एडवाइजरी का सवाल है, उस लेटर का सवाल है, ये बात सही है कि वो लेटर आया था। वो लेटर हमने अपनी एकेडमिक काउंसिल में भी रखा था और हकीकत ये है कि अगर वो एक एडवाइजरी है कि अगर मान लो हमारे बच्चों को हम ऐसे सिचुएशन में भी पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं तो हम उनको क्यों एनकरेज कर रहे हैं कि वो सिलेबस के इशू पर जो है या टाइम के इशू पर अपने एनर्जी को वेस्ट करें। तो गवर्नमेंट का जो लेटर है वो एडवाइजरी है, कंसर्न है, वो हमारी नॉलेज में है। उस पर अगर कोई जरूरत होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेंगे। लेकिन जब आप सब लोग कोर्स को पूरा करा रहे हैं तो उसका मुझे कोई अभी प्राइमा फेसी कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं लगता। सॉफ्ट वे या जो शॉर्टकट्स तो बहुत से लोग लेने की कोशिश करते हैं भाई, लेकिन आप ये देखो ना कि अगर आप ऐसे में इतनी मेहनत कर रहे हो तो उन बच्चों को एनकरेज करो। क्योंकि मैंने कहा कि जब आप कई बार कोर्स को कम करते हो या एग्जामिनेशन के टाइम को कम करते हो तो लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा आप एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को डाउन करते हो। तो क्यों करना चाह रहे हो? नंबर 1। नंबर दूसरे, जो 56 कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट डल चुकी है उनका हमने एफिलिएशन डीम टू बी एफिलिएशन लेटर इशू कर दिया 2020-21 का। तो उनके पार्ट पे तो यह है कि अब वो हमारे एफिलिएशन के हिसाब से हमारे हिसाब से एक्ट करें। 2020-21 के लिए स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट और एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। They will be governed and guided by this university for all academic and administrative purposes. लेकिन एक मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो 2020-21 के लिए आपने जो एफिलिएशन की फीस जमा की थी उस यूनिवर्सिटी के पास, आप उनको लिख के दीजिए कि उस फीस को वो हमारे यहाँ शिफ्ट करें, ट्रांसफर करें। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की, क्योंकि हमने फीस पर इतना एम्फेसिस नहीं किया, क्योंकि हमें ये जो एकेडमिक कमिटमेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट है इस पर हमें बहुत मेहनत करनी थी। क्योंकि हमें ये पता है कि वो फीस कहीं नहीं जाएगी, वो फीस हमारे पास आनी है। बट दिस इज ए रिक्वेस्ट टू ऑल द प्रिंसिपल्स जिनके कॉलेज हमारे साथ एफिलिएट होते जा रहे हैं कि 2020-21 की जो एफिलिएशन फीस आपने विश्वविद्यालय में जमा की है उस फीस को हमारे यहाँ पर शिफ्ट कराएं प्लीज। समय पर आ जाए तो थोड़ा अभी काम आ जाएगा, नहीं तो काम आ जाएगा। हमारे पास अभी ऐसा नहीं है। राज्य सरकार और स्पेशली जो मुख्यमंत्री जी उनका बहुत कंसर्न है और जो यथायोग्य जो सहायता हो सकती है वो मिल रही है।
लेकिन इस यूनिवर्सिटी को प्रोफेशनली एडमिनिस्टर करने के लिए सबके अपने अपनी जिम्मेदारियां, अपने अपने दायित्व हैं। जब वो सब लोग उसका निर्वहन करेंगे तो एक संतुलित तरीके से विश्वविद्यालय समयबद्ध तरीके से अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। बिल्कुल सर, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल सर। थैंक यू विष्णु साहब जी। नमस्कार सर। हाँ, सर नमस्कार, डॉक्टर मनोज आखड़ श्री कृष्णा कॉलेज कोटपुतली से सर। हाँ बताइए मनोज जी। सर एक इस साल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक आनंदम सब्जेक्ट लॉन्च किया है जो पूरी तरह 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, जो फर्स्ट ईयर और यूपीजी के अंदर प्रीवियस में पार्ट 1 में, तो उसके मार्क कॉलेज ये एक्टिविटी करा के और विश्वविद्यालय को भिजवाएगा, और उसमें ये है कि वो नंबर उसके परसेंटेज में मार्कशीट में ऐड होंगे। तो सर इस बारे में भी आप थोड़ा सिलेबस आप ये बताएं कि आप ने वो आनंदम का जो सिलेबस है उसको देखा है? जी सर, उसको पढ़ा था थोड़ा हमने उसको। देखिए ऐसा है कि जो सिलेबस हमारी कमेटी ने बनाया वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को और सोशल और वैल्यू ओरिएंटेड कमिटमेंट्स को दिमाग में रख के बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको बाकायदा बार बार लिखा कि ये जो आनंदम है सो कॉल्ड, ये कहीं ना कहीं लोगों के जो स्टूडेंट्स का जो सोशल कमिटमेंट है या जो वैल्यू ओरिएंटेशन है, भाई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस व्यक्ति को केवल इंटेलेक्चुअल नहीं बनाती, एक बेहतर इंसान भी तो बनाती हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हमने जो सिलेबस बनाया है उस सिलेबस के हिसाब से ही पेपर हम हमारी यूनिवर्सिटी सेट करेगी, और जो आनंदम का कोर्स है उसको आप बच्चों को पढ़वाइए, उसको हम कंसीडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक्सटेंडेड एक्टिविटीज हैं, आप अपने टीचर्स को कहिए वो खुद भी पढ़ लें और बच्चों को उससे जोड़ें। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा जी जी सर, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार सर, आई एम डॉक्टर मोनिका शर्मा फ्रॉम एमडी जी। मोनिका जी बताइए। हाँ सर, एक्चुअली आई वांट टू नो अबाउट इक्विवेलेंसी लिस्ट, क्योंकि ना अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स एडमिशंस के लिए आते हैं। हाँ। तो हमें इक्विवेलेंसी की बहुत प्रॉब्लम आती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंसी में है और कौन सी नहीं है। मोनिका जी देखिए ऐसा है कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक इक्विवेलेंस कमेटी होती है, ठीक है। जब बच्चा 12वीं पास करके आ रहा है तो हम बोर्ड की रिकॉग्निशन देखते हैं कि जो हमारे बोर्ड है पूरे कंट्री में करीब 42 बोर्ड्स हैं पूरे कंट्री में। यस सर। लेकिन कुछ आज की तारीख में भी कुछ ऐसे बोर्ड्स वगैरह कुछ लोगों ने बना दिए, या कुछ ऐसी डिग्री ऐसे वो दे देते हैं 12th की जिससे कि वो वैलिड नहीं होती। तो ये चेक करना एक तो आपका काम है। तो वो जो बोर्ड्स की लिस्ट है वो RBSC के बोर्ड की लिस्ट पर पड़ी हुई है जो फॉलो करनी है। अब बच्चे जो LLM में आते हैं या BA या BSc करके LLB में जो एडमिशन लेते हैं उनकी इक्विवेलेंस का मसला है, तो वो एलिजिबिलिटी का इशू आ गया। तो जैसे ही हम अभी आपको फॉर्म भरेंगे और उसमें आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे एनरोलमेंट की और एलिजिबिलिटी की, तो आप वैसे हम ये चाहते हैं कि कॉलेज अपने लेवल पर इस चीज को इंश्योर करे, हम सर्टिफिकेशन करें, क्योंकि जो इक्विवेलेंस है वो इक्विवेलेंस देती तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कॉलेज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस बच्चे को आप एडमिशन दे रहे हो वो कहीं कोई डूबियस इंस्टीट्यूशन से तो नहीं आया भाई। आज देखिए UGC की वेबसाइट पर 23 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी हुई है, 23। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जो UGC की वेबसाइट रेगुलरली देखते हैं। तो उन 23 विश्वविद्यालयों की कोई अगर डिग्री लेके आता है बच्चा, उसको तो एडमिशन देने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से UGC ने कई इंस्टीट्यूशंस को समय समय पे वार्निंग्स दी हैं, चैलेंजेस वो दिए हैं, चेतावनी दी हैं। हमारे प्रदेश के खुद के गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर डिटेल दी हुई है कि इनकी जो डिग्रीज है इस पर जरा गौर करें, पेरेंट्स देखें, क्योंकि वहां पर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रहे हैं। तो कुछ तो विवेक का विषय है और कुछ डॉक्यूमेंट्स का विषय है। तो आप अपनी लेवल पर इसको इंश्योर करें, लेकिन हम भी अपनी लेवल पर चेक करके
क्योंकि यूनिवर्सिटी के लेवल पर एक इक्विवेलेंस कमेटी ऑलरेडी हमने बना दी है। वो इक्विवेलेंस कमेटी ये देखेगी कि जो बच्चा आपने एडमिशन लिया है वो कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन से तो नहीं आया है जो इंस्टीट्यूशन उस डिग्री को देने के लिए एंटाइटली नहीं था, और उसके बेसिस पर वो हमारे यहाँ से एक ऐसी डिग्री ले जिससे आने वाले समय में दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं मतलब एक लीगल इशू बन जाए। तो वी आर वेरी मच अवेयर। आप इसमें हमको मदद करिए। अगर किसी स्टूडेंट पर आपको भी डाउट है आप इमीडिएटली हमको मेल करिए, हम उसको चेक करा देंगे। बताइए। ओके सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। हेलो। बताइए सर। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। श्री रूपराम स्वामी लॉ कॉलेज नोर से। सर हमने एमजीएस यूनिवर्सिटी में सेशन 21 और 22 के लिए 180 जमा करवाया था, +2 सेक्शन एक्सटेंशन था। तो भैया सर जी, इसमें आप- फी के बारे में क्या करना पड़ेगा? आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में? एमजीएस में? हाँ जी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हाँ, बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में आपने 2021-22 के एफिलिएशन के लिए फीस जमा करा दी? 180 करवाया है सर। 2021-22 के लिए? यस सर, 2 सेक्शन एक्सटेंशन है प्लस। हाँ, तो आप भी महान है और विश्वविद्यालय भी महान है जिसने वो पैसे ले लिए और आपने पैसे दे दिए। भाई जब 2020-21 के सेशन से इस विश्वविद्यालय के साथ एफिलिएट होना है तो 21-22 का सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ होना है। उनके पास जब वो अधिकार क्षेत्रीय नहीं है उनका, जो आप भी जानते हैं, आप Yes. लॉ के आदमी, हमारे गवर्नमेंट का ऑर्डर देखिए, हमारी चिट्ठियां देखिए Yes, sir. जिसमें जुरिसडिक्शन बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। आप उनसे पैसे वापस लीजिए ब्याज के साथ। तो सर ये अपने 2 सेक्शन एक्सटेंशन के लिए सर कोई एक्सटेंशन काय का एक्सटेंशन? आपने बीसीआई से अप्रूवल लिया है? सर चल रहा है, वहां पे लगाया हुआ है सर। नहीं, ऐसे एक्सटेंशन नहीं होगा। हम जस्टिफिकेशन कैसे देखेंगे होगा, जितना आपका 2020-21 में है बार काउंसिल हाँ के जी। एग्रीमेंट पर 21-22 के लिए उतना तो हम इमीडिएट दे देंगे, और अगर यस सर। एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन है तो बीसीआई की कंकरेंस के बिना हम नहीं देंगे। सर क्या करना पड़ेगा उसके लिए बीसीए में? आप बीसीआई में अपना जस्टिफिकेशन दीजिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास और मटेरियल है, आप जेन्युइनली डिजर्व करते हैं, अगर उस पर सहमत हो जाते हैं तो हम दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर पहले वहां से इंस्पेक्शन होगा या यहाँ से होगा सर, यूनिवर्सिटी से? देखिए ऐसा है, चूंकि आपका कॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, अगर एक्सटेंशन होना तो उन सीट्स के लिए वहीं से होगा, उसके बेसिस पर हाँ जी। एफिलिएशन हम एक्सटेंड करेंगे। पहले हमसे आप एफिलिएशन 2020-21 के लिए लो तो सही। आपका कौन सा कॉलेज है? श्री रूपराम स्वामी लॉ कॉलेज। आपके कॉलेज 56 वाली लिस्ट में है? यस सर। 56 की लिस्ट में है? यस सर, है ना? जो आपने हमारी वेबसाइट पे चेक किया है? यस सर। हाँ, तो आपका कॉलेज अगर हमारे साथ एफिलिएटेड हो गया है तो अब हम देखेंगे कि 2021-22 के लिए आपके एफिलिएशन को हम उसी के आधार पर देंगे। अभी हम चेक करके बताएंगे। आप हमारे यहाँ पर आचार्य जी या दीपक भटनागर साहब से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, और सर इसका थैंक यू सर, वेलकम। हाँ हाँ भैया, नमस्कार थोड़ा सा आपसे बड़ा अपेक्षाएं हैं। आप लीगल एजुकेशन को देखते हैं, लॉ कॉलेज पढ़ाते हैं। आप अगर इस तरह के गलतियां करेंगे तो आप लॉ के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे? आपने न तो गवर्नमेंट का ऑर्डर पढ़ा, न हमारे लेटर्स पढ़े। 21-22 की फीस जल्दी से जाके आप वहां जमा करवाया है, तो भाई क्यों जमा कराया है? आप वापस लो उनसे। अच्छा चलो सब। हाँ नमस्कार सर। काफी कॉलेजों ने जमा करवा दी है, ये है कि नहीं है? नहीं, काफी कॉलेजों ने जमा करा दिए तो उनके पास ज्यादा पैसे हैं और यूनिवर्सिटी को तो हाँ। पैसे चाहिए, तो वो जाने और वो जाने। भाई हम तो एक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट प्रोसीजर। तो सवाल ये है कि ये व्यवस्था सरकारी आदेशों से संचालित होगी या अपने हिसाब से जो कर देंगे उससे हो जाएगी? वो तो संभव नहीं है ना। और उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेशन आता है और बाद में कहीं ना कहीं बच्चे सफर करते हैं। बिल्कुल। तो कम से कम इस पर गौर करें। और बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताइए। सर एसबीएस लॉ कॉलेज सीकर। हाँ बताएं सर। सॉरी सर, एसबीएस लॉ कॉलेज सीकर से सर डॉक्टर दिनेश शुक्ला बोल रहा हूँ। हाँ शुक्ला जी बताइए।
नमस्कार। सर मेरा रिक्वेस्ट ये था कि 2021 का जो एफिलिएशन ऑर्डर है वो हमको शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो सीकर से। तो 2021 की, हालांकि मैंने 56 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं देखा है अभी, तो मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता कि उस लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं। मेरा सबमिशन ये है सर कि क्या हम 2021 का जो एफिलिएशन फीस जमा कराया था शेखावाटी में, वो हमको वापस लेकर के आपके यहाँ सबमिट करना है? नहीं, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एक तो फीस हमको ट्रांसफर कर दे। दूसरी बात है कि जिन यूनिवर्सिटीज ने ऐसे लेटर इशू कर दिए हैं, आप हमें अप्रोच करें, हम उसको ओन कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल क्या है कि जो 2020-21 का एफिलिएशन की प्रक्रिया है, ये ऑलरेडी चल रही थी और हम बीच में एंटर किए, तो हमने सरकार के कंसल्टेशन से ये तय किया कि एक स्टेज तक वो विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया को पूरी करके हमें अपनी रिपोर्ट्स और अपना जो डिसीजन है वो हमें कन्वे कर दें। हम उस डिसीजन को ओन करके उन्हें एफिलिएशन का लेटर इशू कर देंगे। हाँ, तो हमें सर इसमें नया कुछ नहीं करना है ना? 2021 का एफिलिएशन ऑलरेडी हमारा आ चुका है। नहीं, 2021 का जो एफिलिएशन ऑलरेडी आपका आ चुका है, उस ऑर्डर के बेसिस पर हमारे यहाँ से आपको ऑर्डर इशू होना चाहिए। ये बताओ भैया। हाँ, भेज दीजिए। ठीक सर। तो इसलिए आप ये इंश्योर करें कि वो जो लेटर था वो उन्होंने इशू कर दिया एफिलिएशन का, लेकिन उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए हमारे यहाँ से आपको लेटर मिलना चाहिए। ये जरा आप चेक कर लीजिएगा और 56 में, और आप उस लेटर को अलग रख दीजिएगा, क्योंकि 2020-21 के लिए जो हमारे यहाँ से एफिलिएशन लेटर इशू हो रहा है वही लेटर आपके लिए बेस डॉक्यूमेंट है, पहले विश्वविद्यालय का डॉक्यूमेंट नहीं। जी बताइए। बताइए सर, थैंक यू सर। Sir, very good afternoon. On behalf of Government Law College, Bombay. Sir, my concern is again with the transfer of fees from the respective university from where we had an affiliation already. So my request is that we should have an official directory orders from your university so that we can have the reference of that letter and we can ask for the transfer of fees for the concerned university. Okay, we will issue a letter to all the affiliate. Now, अब जो कॉलेज अब हमारे यहाँ से एफिलिएट होते जा रहे हैं, हम उनको नेक्स्ट लेटर लिखने वाले हैं कि 2020-21 के लिए जो उन्होंने फीस जमा कराई है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में, उसको हमारे यहाँ पर ट्रांसफर कराएं और उस लेटर को हम उन यूनिवर्सिटीज को भी लिखेंगे। सो दैट इज नॉट इशू। रजनी जी, एक चीज आप जान लीजिए। रजनी जी, आई वांट टू मेक ए सबमिशन कि आप लोग लीगल एजुकेशन के लोग हैं, इसमें सीट्स की संख्या उतनी ही होती है, उतनी ही होनी चाहिए जितनी बार काउंसिल ने एग्री की है। इसलिए कुछ विश्वविद्यालयों ने अगर अपने स्तर पर उस सीट संख्या को बढ़ा दिया है तो उसको ओन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। उसके लिए So we had one more direction to and take the admissions for EWS, 10% more seats. So we had admitted 132 students, whether they would be admitted or not in your university. आप ये बताएं कि वो जो EWS है वो विद इन दैट प्रिस्क्राइब लिमिट होना है या उसके ऊपर होना है? So that is plus. We had a direction from the directorates. While we are taking the admissions, we had concerned the university also and the commissionerate also that what we need to do. So we get the directions about the notification from BCI. In that case, if the directorate has given official order, we will seek the concurrence from BCI also. And in that case, if it is a letter issued by the college commissionerate, we will certainly honor. However, it would require further clarification from the BCI because there is a confusion that whether it should be within 120 or above 120. So this is a technical subject, but in principle we will agree because you are saying that a letter has been issued by the government, college directorate. Yes, sir. So clarification has been given regarding that, and we had submitted the fees to BCI for 120 seats only. So what about that issue? BCI को कितना किया है? So 120. Already we had a 3 year of affiliation previously, and we had submitted the fees for previous 3 years. So we had an affiliation of 120 seats. And जो clarification आपको दिया है, yes, that is plus 12, sir. और वो आपने BCI को भी भेज दिया है? So that has been informed that we had an admission of 130 students as per the directions, because in the last year also under the University of Kota we had admitted plus 12 students. We had an admission of 132 students, although we had an affiliation of 120 students from University of Kota also.
आप हमारे यहाँ जो भेज रहे हैं ना लेटर, उसमें उसको लगाइएगा जस्टिफिकेशन जो क्लैरिफिकेशन दिया है ना। We had हाँ, already we will conveyed take into this to the university, we sir. will We have take made. into consideration. मैं बार काउंसिल में बात करूंगा, आज ही बात करूंगा, and we will seek their advice also. No issue. Sir, But इसमें basically it will not be a one more big concern problem. is there. Sir, one more concern is there. Sir, as per the rule of BCI, rule number 10, we had directions to adopt the semester system. Though we can understand right now our university is novice university, so we could not initiate the process immediately regarding the semester system. But it's my request that in next semester or next annual system, we would have an annual structure, sir, annual schedule, so that we could have a reckoning period to go through respective things for the admission, for the examination, for the classes also, and simultaneously we should adopt a semester system also. No, I think it's a welcome step. We will certainly do the needful, because we also want the same thing. We will maintain the academic calendar. We will maintain Yes, sir. all the defined schedule. So the Yes, sir. point is well taken. We will certainly do the needful for that. Thank you so much, sir. Thank you. सर मैं निवेदन करूं, जी बिश्नोई सर, बताइए। ये जो EWS का है, इस EWS के अंदर बार काउंसिल का भी ये क्लियर है और राज्य सरकार का डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन का भी क्लियर है कि जितना इनटेक आपको दिया गया है उसके 10% एक्स्ट्रा होगा। तो ये क्लियर है सर, बार काउंसिल का भी है। देखिए ऐसा है कि हमें 35 पोस्ट मिली, जी जी, फैकल्टी की 35 पोस्ट मिली और 35 हमको भरनी है, बिल्कुल। और उसमें भी EWS का कोटा है, ठीक है। हाँ, तो हमें तो DOPT ने कहा कि साहब जो EWS का कोटा है वो विदिन 35 ही आपको देना है। तो हम इस ग्राउंड पर, अगर ये लॉजिक है, तो 35 के प्लस ले लेंगे उनसे बिश्नोई साहब। बट डोंट वरी, यू हैव ए वैलिड पॉइंट, और अगर ऐसा है तो उसको हम फॉलो करेंगे, डोंट वरी। हाँ, बिल्कुल। Sir, as far as admission in law is concerned, Yes. Dr. MS Rajpurohit from Government Law College, Pali sir. हाँ बताइए राजपुरोहित जी। जहाँ तक जिसको एडमिशन जो लॉ कॉलेज में लॉ कोर्सेज में एडमिशन की सवाल है, बार काउंसिल हैज मेड इट क्लियर दैट इट विल बी 10% other than the sanctioned strength. ठीक है। As far as state government is concerned, state government ने कह दिया विदिन उसमें कर दीजिए, उन्होंने दूसरे नहीं, अगर ऐसा कहीं पर कोई कंट्राडिक्शन होगा तो उसको हम स्टेट गवर्नमेंट से क्लैरिफाई। यू डोंट वरी, इफ बार काउंसिल एग्रीज वी विल एंश्योर दैट इज ऑनर्ड, नो इशू। आगे बताइए। सर नमस्कार, एक सर बात और थी मेरी जी। डॉक्टर मनोज आगड़ सर, ये जो मैं बार काउंसिल BCI की इंस्पेक्शन टीम का मेंबर भी रहा हूँ, तो सर मैं उस वक्त ये इश्यू आए थे कि जो सीट्स है उसका एफिलिएशन यूनिवर्सिटी देगी और उसको अप्रूव BCI करेगी, उसके बाद में कॉलेज एडमिशन करेगा, पहले BCI नहीं देगा। पहले यूनिवर्सिटी की अगर एक्सटेंशन मुझे चाहिए तो मैं आपके अप्लाई करूंगा, आप करके मेरे कंडीशन लगेंगे सब्जेक्ट एडमिशन सब्जेक्ट टू अप्रूव बाय BCI। बिल्कुल, ये मनोज जी, ये स्मूथ सिस्टम को स्मूथ बनाए रखने के लिए प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। जो ऑलरेडी आपके जितनी सीट दी गई है उसके एक्सटेंशन के लिए हम फौरन अलाउ कर देंगे आफ्टर आवर सेटिस्फेक्शन। उसके बेसिस पे BCI कर सकती है, BCI चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती है। अगर वो बढ़ाती है तो हम उसके लिए एफिलिएशन के लिए एडिशनल लेटर इशू कर देंगे, नो प्रॉब्लम। जी जी सर, थैंक यू। बिल्कुल सही है। ये दरअसल क्या है कि जहाँ सिस्टम ऑलरेडी फंक्शनल है जी, वहाँ कंटिन्यूम मेंटेन करने के लिए ये है। तो हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में यही किया था, सो नॉट ए इशू, वी विल फॉलो दैट एब्सोल्युटली। जी सर, थैंक यू सर। सर नमस्ते सर, मैं चित्तौड़गढ़ से महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज से प्रिंसिपल बोल रहा था। जी जी सर, एक ये प्रॉब्लम है कि जो इनरोलमेंट, जैसे हम सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनसे भी हम माइग्रेशन ले, क्या जो ग्रेजुएशन पास करके आए हैं और LLB में एडमिशन दिया, क्या उनसे यूनिवर्सिटी के, जैसे सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट्स है और उन्होंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो उनसे भी माइग्रेशन लेना पड़ेगा क्या? अब तो मैं ये समझता हूँ, हालांकि आपने टेक्निकल पॉइंट रेज किया है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने के लिए वो जहां से भी आए हैं, चाहे भले विद इन स्टेट है, उनको माइग्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से भी लेना पड़ेगा, ठीक है सर। भैया मनीष जी बताओ अब क्या इशू है? सर, एक जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 20 मार्क्स का, सर ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो पेपर है, उसके रिगार्डिंग सर क्या बताइए, कॉलेज लेवल पे कंडक्ट कराया जाता था अभी तक है? तो अभी तक तो कॉलेज लेवल पे कंडक्ट कराया जाता था फाइल और जो ये वाइवा वगैरह होता था, और अभी कोविड के चलते उसको कैसे कंडक्ट करवाना है सर? हाँ, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर अभी
इवॉल्व करेंगे चीजें, हम कंसल्ट करेंगे, डोंट वरी। जो कॉलेजेस जिस तरह से करते रहे हैं वो करेंगे। अभी जो सिचुएशन है उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन का जो इशू है या प्रैक्टिकल्स का जो इशू है या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जो इशू है, इस पर हम एक जुडिशियस एडवाइजरी भी इशू करेंगे, डोंट वरी। बट इन द मीन टाइम the role performed by the colleges will remain the same, and we will work in consultation and in coordination with the colleges. नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मनोज व्यास बोल रहा हूँ, प्रोफेसर एडी बोरा मेमोरियल विमेन लॉ कॉलेज जोधपुर से। बताइए। जो जी सर, जेएनवीयू से हम अभी तक एफिलिएटेड थे, सेकंड ईयर फाइनल ईयर एज इट इज रहेगा। हमने जब जेएनवीयू में फीस भेजी थी एप्लीकेशन की, तो उन्होंने ये कहते हुए दे दिया वापस हमको ड्राफ्ट कि अब आपको फीस वहां पे भी देनी है और यहाँ पे भी देनी। तो उन्होंने उस वक्त में ड्राफ्ट हमको वापस दे दिया, वो हमारे बैंक में जमा हो गया। अभी जो उनसे लेटर तो हमसे मांग रहे हैं 10,000 सेकेंड ईयर के 10,000 रुपए फाइनल ईयर के, प्लस पर कैंडिडेट पर स्टूडेंट 850 रुपए जो हम भेजते हैं वो भी भेजना है। तो आप हमें डायरेक्शन दे दें, तो आपको हमें फर्स्ट ईयर की जो एफिलिएशन फीस देनी तो किस मोड में भेजनी है और कितनी भेजनी है, तो हम हमारे एंड पे ही भेज देते हैं सर, क्योंकि यूनिवर्सिटी को हमने दिया ही नहीं है। अगर आपने यूनिवर्सिटी को नहीं दी तो आप डायरेक्ट हमको दे दीजिएगा। जो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ जिन्होंने 60 स्टूडेंट्स हैं, पीसीआई ने 7 की परमिशन। हाँ, तो जो हम जो है ना, फीस का जो हमारा पैटर्न है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। अच्छा, उसी बेसिस पे हम चार्ज करेंगे। और अगर आपने वहां जमाने की, लेकिन ये बताइए कि उस यूनिवर्सिटी ने आपको 2020-21 के लिए एफिलिएशन का वो सर्टिफिकेशन दे दिया, फिटनेस दे दी? जी सर, बिल्कुल दे दिया। और आपसे जो लेटर इशू हुआ है वो भी मेरे पास ही पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आप उसकी फीस हमको डायरेक्ट जमा कर दीजिएगा। ठीक है, हम उसकी डिटेल देंगे वेबसाइट पे, आप उसके रिस्पॉन्स में जमा कर दीजिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। बिश्नोई साहब बताइए कुछ, आप बताइए कुछ बिश्नोई साहब। भगवान आराम जी। इस अपेक्षा के साथ देखिए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय है, विधि विश्वविद्यालय है, प्रोफेशनल एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, हमारी कोशिश ये है कि पहले दिन से हर एक चीज, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशंस, सब कुछ ट्रांसपेरेंट और फंक्शनल रहे। इसलिए ये जरूरी है कि इसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए आप लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट करें और हमें इस प्रोसेस में हेल्प करें। उस हेल्प करने में सिर्फ ये है कि अपने अपने लेवल पर जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसको जरूर समयबद्ध तरीके से पूरा करें, क्योंकि हम इतने डेलिकेट कंपोनेंट को डील करते हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें बहुत सारी सेंसिटिविटीज होती हैं। हम लोगों के लिए भी बहुत आसान था कि हम भी शिथिल हो जाते और इस स्टेज तक नहीं आ पाते। सर एक रिक्वेस्ट और है सर, अगर आप मौका देंगे तो। हाँ बताएं सर। एक ये है कि हमारा एक बाकायदा जो एक्ट है उसको भी हम इस पे अपलोड कर देंगे। उसकी सेक्शन 4 को आप क्लियरली थोड़ा सा ध्यान करें, संज्ञान करें। उसमें लिखा है कि जिस तरह से आप जैसे ही यहाँ से एफिलिएट होते हैं तो आप पुरानी यूनिवर्सिटी से डी एफिलिएट और एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो हमारा 20-21 से जो सेशन है, उनके जो आगे एग्जाम्स हैं 20-21 से लेकर के आगे तक के, वो तो उसका एफिलिएशन तो हमसे रहेगा। लेकिन हमने लेटर्स में पहले भी लिख दिया है, जो पुराने फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में सो ऑन जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एफिलिएशन पुरानी यूनिवर्सिटी से रहेगा। सर मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जहाँ तक एक्ट का सवाल है, हमारा एक्ट बाकायदा हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। सेक्शन 4 ज्यादा जरूरी। सेक्शन 4 की कंप्लायंस में गवर्नमेंट ने 22 जुलाई को जो लेटर इशू किया है वो सेक्शन 4 के ही रेफरेंस में किया है सर। और ये सबको क्लैरिटी उस लेटर में भी है कि जो 2020-21 से पहले जो स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं उनकी डिग्री कंप्लीट करने तक का काम तो वही विश्वविद्यालय करेंगे, लेकिन 2020-21 में जो बच्चे एडमिट हुए हैं या आगे जो एफिलिएशन होगा उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की होगी। इसलिए हम लोग इतनी बार डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें किसी को अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, काइंडली एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। वो तो अभी कोविड की सिचुएशन है, अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो स्टूडेंट्स का कितना बड़ा प्रेशर होता है इस समय एग्जामिनेशन कराने के लिए। तो हमारी चिंता ये है कि हमें रिस्पॉन्सेज बहुत ही ज्यादा स्लो मिले हैं, मतलब
विश्वविद्यालयों से रिस्पॉन्सेस के लिए पर्सनली जाना पड़ा है, हमारे रजिस्ट्रार गए, हमने चिट्ठियां लिखी हैं, फोन्स किए हैं, और अनफॉर्चुनेट है जैसे कि उन्हें अब इन स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं रही, क्योंकि उनके साथ तो उनका अब कोई वास्ता नहीं रहा। लेकिन हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, एंड वी कैन अचीव एनी टास्क इन ए कलेक्टिव वे, एंड फॉर दैट look forward to have your active participation. Thank you very much to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, have a great day. Namaskar. Thank you, sir. Thank you.